जैसे हम गृहस्थ हैं प्रभु जी, सो हाउ वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। हमारे वैदिक कल्चर में रह करके हाउ कैन नॉट समबडी नॉट बी हैप्पी। इट इज सच अ सिंपल ब्यूटीफुल कल्चर। ऑल अक्रॉस द ग्लोब पीपल कम टू इंडिया टू लर्न अबाउट आवर स्पिरिचुअल कल्चर। तो इसलिए आज इंडिया जो है वो दुखी है। यू नो लाइक जो यंगर जनरेशन है हमारी, उनको कैसे हम शेप अप कर सकते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। देखिए, राम जी का धैर्य भी चाहिए और कृष्ण जी की चंचलता हम कॉपी नहीं करते। कृष्ण जी ने जो हमें दिया ना वो भगवद गीता दिया है। सो भगवद गीता इज व्हाट कृष्ण इज ऑफरिंग टू अस। वी कांट कॉपी कृष्ण चंचलता। Prabhu ji, what about success? Everybody is just crazy after success, running towards success. Yes. What is the true definition of success to you? आप सात्विक खाते हैं तो आपके विचार सात्विक बनते हैं, क्योंकि आप जो भी खाते हैं that becomes part of your gross body and as well as subtle body, जो कि मन बुद्धि अहंकार है। तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार का कंटेंट, उसका नेचर क्या बनेगा, खाने पे डिपेंड करता है। लिव इन तो मतलब मैं तो इसको कुत्ते बिल्लियों कल्चर मानता हूँ। yes. अगर लिव इन देखा जाए बेसिकली इतना सेल्फिश है लिव इन। Hare Krishna. I'm Kirti Rajpal and welcome to Antara Unplugged. Today we have a very special guest on our show, and his energy is so infectious and his ever pleasant smile. Whenever you will see him, and like on podcast, in YouTube, Instagram, you will just find him smiling. So he is none other than Amog Leela Prabhuji with us today. Thank you, Kirti ji. It's an honor for me that I'm part of this podcast. Thank you so much. It's Hare like, Krishna. thank you really. I mean, for finding this little time for us. And Prabhuji, how do you maintain your energy? You are like so super energetic. Okay. Actually, every day I take parathas of glucon D in my breakfast, in my lunch, in my dinner. I'm just joking. Well, actually, energy comes from various sources. Firstly, it is spiritual energy because in the morning we spend significant amount of time chanting the names of God. Yes. Also hearing the holy sermons from the holy scriptures. That's also very energizing. Also, when you live a very selfless life, that means you don't live for yourself, but you live for others. Yes. That spirit in itself is also very energizing. Yes. Also, having healthy food, when we have pure vegetarian food without onion garlic being offered to God, so that food also energizes you. That's also very important. Having a regulated lifestyle, that means early to bed, early to rise, makes man or woman healthy, wealthy and wise. So having a regulated lifestyle, that's also very important for having energetic life. Also, when you live a life of purpose, that gives energy. In case there is no purpose, and it's a very ritualistic life, very cyclic life, very mechanistic life, which is very dry. Very But dry, when we have yes. very high purpose to pursue, Yes. a goal to pursue, Absolutely. that gives us energy. Energy, And yes. having, of course, energetic association around us, that's also energizing. Yes, absolutely right. Prabhu ji, जिस उम्र में जो आप you're so young and to this age आप करियर के लिए पीछे भाग रहे होते हैं, फैमिली फ्रंट में हम भाग रहे होते हैं. So प्रभु जी, how you chose the path of spirituality? Yeah. Well, I was working as software engineer, तो मैं चाहता तो मैं भी कंटिन्यू करता, और मेरी एक बीवी होती, 3 बच्चे होते, फिर मेरा 5 लोगों का परिवार होता. That's it. But I was very ambitious. That means I wanted whole world to be my family. Yes. So for that I should be a monk. A monk means the whole world is my family. मैं मैरिड होता, मेरे 5 लोगों की फैमिली होती, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, 4 बच्चे मैक्सिमम. That's it. पर मैं ये 5-6 लोगों का परिवार ना. So that was one reason I wanted to have whole world as my family. साथ ही कारण ये था that I could see that whole world is already living a life which is a kind of assembly line kind of lifestyle. Yes. So it's like automated lifestyle, autopilot mode lifestyle. That's true. So I wanted to contribute to the society because I could see that there are people who are suffering less because of body, more because of mind. तो ऐसे लोग हैं जो शरीर की सेवा तो कर रहे हैं, there are people. 100%. लेकिन अब मन की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है. तो लोग तन से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी हैं. उनकी ईगो बहुत दुख देती है उनको. तो इसलिए उस एस्पेक्ट पे काम करना बहुत जरूरी है. सो अर्लियर माय प्लान वाज टू बिकम मिलियनेयर, आई मेक लॉट ऑफ मनी, हेल्प पुअर पीपल. तो लेकिन गरीब लोगों की ना सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन शरीर की सेवा तो हो रही है, लेकिन मन की सेवा कोई नहीं कर रहा है. बहुत कम लोग हैं ऐसे करने वाले. सो आई थॉट दैट आई शुड सर्व इन दैट एस्पेक्ट. तो इसलिए मैंने डिसाइडेड दैट आई शुड बिकम अ मंक एंड सर्व द माइंड्स ऑफ द पीपल, because mind is more important than the body. Yes. That's why we say That's mind your very own true. business. We never say body your own business. Right? That's So true. mind is more important. So, and third reason was that God gave me so much. I always had wonderful parents,
They're still there. They're blessing me. Nice. Lovely sisters, very good friends in terms of talents, in terms of various kind of abilities. God bless me. तो मुझे लगता था भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर मैंने भगवान को क्या दिया? कुछ नहीं दिया. So I'm dabba. I'm such a useless guy, such a selfish person, such a self-centered person. So I decided that whatever God has given to me, I should give that in service back to God. So इसलिए मैंने सोचा that I should just completely dedicate You're a myself. true inspiration, तो really. इसलिए by God's grace कहते हैं वो खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान. तो हाँ, अगर कोई गधा हो पहलवान हो जाता है, ये खुदा मेहरबान होता है. तो इसलिए it is actually God's grace that whatever little I am able to contribute, people are appreciating, their lives are getting changed. But actually I'm just an instrument of the grace of God. That's it. Yes. Nothing else. So we are to become just His instrument. So He loves us. Yes. So we are to become the carriers of His love. That's it. You are influencing millions of people out there, and I feel जैसे हम गृहस्थ हैं प्रभु जी, हाँ जी. so how we can give back to the society? हम कैसे उस चीज को यार हम गृहस्थ कर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है गृहस्थ नहीं दे सकते. नहीं, Those हाँ. who are What's the bald right headed, way? saffron वाले सिर्फ यही कर पाएंगे, सोसाइटी सेवा नहीं. बल्कि इस कौन के अंदर आप देखिए 99.99% people are गृहस्थ. They are making beautiful temples for the Lord. उसके लिए contribute करते हैं, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं, चाहे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग रथ यात्रास, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स. गृहस्थ डू ऑल ऑफ दिस. अब जैसे आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है इंदौर के अंदर, जी. यू आर द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग, यू आर अ गृहस्थ एंड We are part गृहस्थ आर of it, कंट्रीब्यूटिंग. yes. यस. So इसके लिए ऐसा नहीं है गृहस्थ दे कांट कंट्रीब्यूट. So we have our role to contribute. We are offering and then you are also offering your services. So Yes. God is seeing that Yes. आप कितना कर सकते हो, फिर आपने कितना किया. भगवान ये देखते हैं. तो कि ये मान लो कर सकती थी 100 किलोग्राम, किया 80 किलोग्राम. नाइस. मान आई कुड डू 100 किलोग्राम, मैंने किया 50 किलोग्राम. अरे ओ तुमने कम किया. आई कुड हैव डन मोर. तो इसीलिए भगवान ये देखते हैं आप कितना कर सकते थे, फिर कितना किया. आपकी जिम्मेदारी भी है. You got a kid, you got a job, you got your health, your household absolutely. responsibilities. Despite that, you are doing this much. Very good. प्रभु जी, आपने कहा saffron color. What is the significance of saffron color in your life Yeah. and cultural significance? Actually, saffron जो color है, it signifies 100% selfless, intense service to God. That's the color of saffron. And that's what you see on flag also. सबसे ऊपर का जो रंग है वो saffron है. Saffron means living a life of exclusive, dedicated service, whether to the nation. So on the flag, Yes, that is yes, being represented, and of course that shows spiritual culture, part of Indian culture. Indian That culture. people come to India to learn spiritual culture. So that's why saffron is there. So green is there, of course, prosperity. White is there for that peaceful life, and saffron is there, signifying spiritual culture of Spiritual India. culture. So saffron means dedicated service to God, and that's why we wear saffron. Like those who are Buddhists, they wear crimson red. Okay. Or those who consider God as formless, they also wear red. But we wear little different kind of orange, peach color saffron. So this represents service to God. So that's why we wear this. Prabhuji, what is the difference between being spiritual and being religious? Okay, very It's good like question. very intertwined, you know, Yeah, like yeah, people yeah. take it Yeah. that way. You know, being religious means you follow certain set of rituals. जैसे for example, say अगर हिंदू है वो ऐसे प्रार्थना करता है, या जो मुसलमान है वो ऐसे प्रार्थना करता है, जो क्रिश्चियन है वो ऐसे प्रार्थना करता है. So different postures आपके हो सकते हैं, no doubt. तो ये religion में आते हैं कि इस दिन व्रत रखेंगे, इस दिन व्रत नहीं right. होता, right? इस तरह से पूजा करेंगे, ये हमारे मंत्र उच्चारण होंगे. तो इस तरह से ये आपके exoteric details हैं religion की, where you Okay. express yourself through certain activity. Activities. So that is religion. Spirituality क्या है? Means spiritual feelings. So feelings भी होनी जरूरी है, feelings को express करना भी जरूरी है. For example, somebody likes someone. So मेरे में वो liking है, और मैं क्या करता हूँ, एक बुके लेके जाता हूँ 14th February को. And you know, I like you so You have much. to I express, love you. And yes. so you express it. Yes. So offering a bouquet Okay. is that religion part. Okay. And the feelings for someone, that is spiritual thing. So having feelings for God, Yes. that is the devotional feelings, is spirituality. Spirituality. पर उस spirituality को हम express करते हैं through an activity. Like for example, going to temple, doing some abhishek, offering some flowers, doing aarti, Yes. admiring the Lord, singing some praises. Now all of these are activities which are expressing those feelings. So वो religion का part है. So इसलिए spirituality और religion दोनों साथ से चलते हैं. They complement each other. Sometimes people say, no, I am spiritual, but I am not religious. Yeah. Sometimes people say, well, I'm spiritual, but I'm not religious.
Or some people may say, well, I'm religious, but I'm not spiritual. But that's not possible because both complement each other. If I have feelings, I will express it. Goes hand in case in there is hand. expression, Yes. there has to be some feelings also. Yes. Like there are people Absolutely who right. worship, but there are no feelings. ओम जय जगदीश हरे, भाई लंच तैयार कर दो, सुख संपत्ति का राह है, कष्ट दिन, ओम जय जय, अब feelings नहीं है लेकिन इसके अंदर, ritual है सिर्फ, Right. तो ये अधूरा है. They have to emote that Exactly. way. तो feelings भी होनी चाहिए, expression भी होनी चाहिए. So spirituality and expression, Expression. that is religion, they complement each other. Prabhuji, what are your thoughts on food? Does it affect our, your thought process? Yes, of course. Does it That's what affect Lord our Krishna, thought process? yes, of course it is there. That's what Lord Being Krishna speaks about vegetarian it. and being Yeah, of course, non-vegetarian. absolutely. Lord Krishna speaks about this in the Bhagavad Gita, chapter 17, verse number 8, 9, 10. He talks about sattvic food, rajasic food, and tamasic food. Tamasic food. Yes. Because food really impacts. And in 6th chapter, he says, those who eat too much or eat too little, those who sleep too much or sleep too little, they cannot become yogi. और they cannot Okay. become successful in whatever they are pursuing. यानी खाना और सोना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है. अच्छी नींद भी जरूरी है और सात्विक खाना भी जरूरी है. आप सात्विक खाते हैं तो आपके विचार सात्विक बनते हैं, क्योंकि आप जो भी खाते हैं दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर ग्रॉस बॉडी एंड एज वेल एज सटल बॉडी, जो कि मन बुद्धि अहंकार है. तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार का कंटेंट, उसका नेचर क्या बनेगा, खाने पे डिपेंड करता है. सो गार्बेज इन, गार्बेज आउट, नेक्टर इन, नेक्टर आउट. तो इसीलिए आपके विचार जो है आपके खाने से बनते हैं. लाइक दोज हु आर इनटू मीट ईटिंग, मीट जो है उसकी तहसीर ही ऐसी, इट मेक्स यू रेस्टलेस, इट मेक्स यू वेरी पैशनेट, इट मेक्स यू वेरी एक्सप्लॉइटेटिव. ऐसा होता है. तो इसलिए, और अगर शाकाहारी भोजन खाते हैं, वी फील मोर काम डाउन. और आपने शाकाहारी भोजन को भगवान को भोग लगा दिया, लो जी अब तो ये सात्विक से भी ऊपर हो गया, ट्रांसेंडेंटल हो गया. और पुराना स्टोर्ड है, पुराना फंगस वाला खाना यहाँ अंदर पड़ा हुआ है फ्रिज के, बाहर निकाला, फिर से माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर खा लिया, दैट इज तामसिक. जैसे ये शराब वगैरह तामसिक है. पुराना फ्रूट जूस है, उसको सड़ा के दारू बनाई और फिर हमने उसके पैक लगाए, तामसिक. तो इसलिए जैसा अन्न वैसा मन. So Lord Krishna, that's why I emphasize that सात्विक होना चाहिए, that which is juicy, wholesome, pleasing to the heart, healthy. जो बहुत ही राजसिक है, that is very चटकारेदार, मसालेदार, जिसमें सिसकियाँ निकल जाए. तामसिक is very dull. What about onion garlic, Prabhuji? Actually, onion It's garlic like Ayurvedic medicines में भी काफी लोग लेते हैं ये सब चीजें. Actually, onion garlic वैसे तो प्लांट से आता है. कुछ लोग बोलते हैं भाई पौधा ही तो है, क्यों प्याज लहसुन से इतनी नफरतें कर रहे हो आप. लेकिन प्याज लहसुन जो है, अगर आप देखिए नवरात्रों में लोग त्यागते हैं, यानी कि कहने की उसकी ओरिजिन इतना अच्छा नहीं है. अगर आप बाहर के भी कल्चर से देखें, जैसे ग्रीक कल्चर है, टर्किश कल्चर है, उसके अनुसार भी यही है, देन द डीमन स्टेप्ड आउट ऑफ हेवन. तो जहाँ पहला कदम रखा वहां से प्याज होगा, जहाँ दूसरा कदम रखा वहां से लहसुन होगा. तो ऐसे नहीं सिर्फ सनातन धर्म में, इवन ग्रीक कल्चर, टर्किश कल्चर में भी जो है इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया. Like one of the novels by William Shakespeare, there he mentioned about some characterless ladies in one of his novels. So एक characterless lady दूसरे characterless lady को बोलती है कि तू छुपाती कैसे अपने बारे में कि ना you are having some extramarital affair. कहते कुछ नहीं, मैं तो प्याज खा के जाती हूँ, मुंह से बदबू आ रही होती है, मेरा पति पूछता ही नहीं कहाँ से आ रही है. So it was that kind of thing. So इसको इतना अच्छा इसलिए नहीं माना गया. लेकिन इसकी मेडिकल वैल्यू इसलिए है, रीजन बीइंग as per Vedic scriptures, it is the blood of Rahu. राहु एंड केतु. ये मोहिनी मूर्ति ने जब सर काटा था, क्योंकि राहु केतु आके मिल गए थे समुद्र मंथन की, जो समुद्र मंथन की जो लीला आती है उसके अंदर. सो तो जब सर कटा तो जहाँ उसकी हड्डी गिरी वहां से लहसुन होगा, जहाँ से मांसपेशी गिरी वहां से प्याज होगा. This is the story. As per scriptures. अब क्योंकि वो राक्षस का खून और हड्डी है, तो इसमें मेडिकली तो उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं कि आपका बीपी, शुगर वगैरह, घुटने वगैरह, चलो वो हेल्प करेगा आपको. लेकिन साथ ही राक्षस की जो मेंटालिटी होती है, दैट मींस राजसिक रेस्टलेसनेस, वो भी इसके अंदर आती है. साइंटिफिकली ऑल्सो इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं. सो दे कंबाइन विद द एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. आपकी बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे, बिकॉज नाउ न्यू कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी. और ऑक्सीजन की क्वालिटी एज पर केमिस्ट्री इज दैट इट फैसिलिटेट्स बर्निंग. राइट. तो आपकी बॉडी में ना सेल्स का जलना, उसकी जगह नए सेल का आना फास्ट होता है. इन अ वे एजिंग फास्ट होती है, यानी आप जल्दी बूढ़े होगे, जल्दी मरोगे प्याज लहसुन खा करके. ठीक है जी. साथ ही इससे जो वन ऑफ स्टडी आल्सो शोज दैट इससे आपकी थिंकिंग मैकेनिज्म स्लो होता है, रिएक्शन टाइम जो आपका इससे स्लो डाउन होता है. जैसे इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, दे स्लो डाउन योर रिएक्शन टाइम. उस तरह से आपके ब्रेन को डल करता है. सो मच इफेक्ट फूड हैज ऑन यू. एक्चुअली यस. तो प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए. और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देखिए, कोई बोले ये तो सब कहानियों की बातें हैं, तो हम नहीं मानते, ना साइंस को मानते हैं हम, ना ये मोहिनी मूर्ति की कहानी को मानते हैं. हम एक बात को मानते हैं, स्वाद.
Everything is for the tongue. टंग. So जहाँ पर प्याज लहसुन की ग्रेवी आ जाती है ना, वहाँ पर आपके सारे स्वाद गए. ना पालक का स्वाद, ना आलू का स्वाद, ना मटर का स्वाद, ना गोभी का स्वाद, सिर्फ एक ही स्वाद, प्याज और लहसुन का स्वाद. क्योंकि ये लोग ना सब्जी के अंदर गुंडे हैं, चंगू मंगू हैं ये. हाँ. प्याज लहसुन कहते हैं, जब हम आ गए ना, पालक क्या रे चुप, मटर क्या तू मटर गश्ती कर रहे चुप, सिर्फ हमारा स्वाद रहेगा. तो अगर आपको सारी सब्जियों में एक ही स्वाद चाहिए, प्याज लहसुन डालिए. लेकिन अगर आपको चाहिए पालक का पालक वाला स्वाद, गोभी का गोभी वाला स्वाद, आलू का आलू वाला स्वाद, तो उसमें प्याज लहसुन मत डालिए. हैव यूनिक टेस्ट. हम क्यों सारी सब्जियों में एक ही टेस्ट चाहते हैं, उसमें ग्रेवी प्याज लहसुन की बना करके. तो इसीलिए हमें प्याज लहसुन से बचना चाहिए. अगर आपको बाकी चीजों पे नहीं विश्वास, कि हम नहीं मानते धर्म की बातें, नहीं मानते साइंस की बातें, कम से कम नहीं जीभ के लिए प्याज लहसुन मत डालो. Right. Prabhuji, what about success? Everybody is just crazy after success, running towards success. Yes. What is the true definition of success to you? Well, for me, when you are happy, and because of you, people around you are also happy. That is a success thing. So, yani money can be part of it, but money is not heart of it. Right. People usually associate success with money, with how much you have acquired as a position in terms of managerial hierarchy. That can be some part of it. But there are people who are on the top ladder of hierarchy, yes. but they are not happy. They're not happy. They are miserable. actually. Having everything in their Yes, lives they are so and lonely. they're They are not. depressed. Yeah, depressed. और उनसे जो रिश्ता बनाते हैं ना, इसलिए बनाते हैं, अरे काम का आदमी है यार, पावर है बंदे के पास, Power है. सर गुड मॉर्निंग मैडम, पर इसलिए एक दिन आपसे काम निकलवाएंगे हम. तो उनको पता है जितने रिश्ते नाते हैं ना यार, ये सब तो मेरे पैसे की वजह से, मेरे से कौन प्यार करता है. सो दे आर वेरी लोनली. पर क्या वो वाकई में सक्सेस है? नहीं. पहले वो गरीब आदमी था तो देसी दारू पीता था, आज वो सक्सेसफुल हो गया, पैसे वाला हो गया, अब वो विदेशी दारू पीता है. सो क्या सक्सेस मींस ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी दारू? इज दैट सक्सेस? No, absolutely not. आर यू रियली हैप्पी? क्या आप खुश हो, और आपकी खुशी की वजह से आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश हैं? दैट इज रियली अ सक्सेस. यस, ट्रू सक्सेस. तो ये हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. सो बट कुछ लोग मानते हैं कि पैसा ही है तो वही सक्सेस. Like there is saying that some people are so poor that all they have is just money. कुछ लोग बस एक ही चीज है, पैसा, और कुछ नहीं है उनके पास. They don't have relationships. They don't have emotional support. अब They don't प्रभु have जी good health. इतना डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है लोगों Yeah, yeah, को. yeah. So how do you fight all of that? क्योंकि Yeah. इतना प्रेशर है आजकल की सोसाइटी में, and especially children. If you जी, see जी. little children, I have my little one, exams pressure, and I don't know what not. Now suicides are happening so much. So everything is interlinked, right? Yes, So that's true. what about depression, Prabhuji? How to fight it देखिए, when depression- somebody is having those signs of depression? Yeah. How can anybody come out of that state? एक्चुअली डिप्रेशन का कारण ये है कि ना, जब मेरी नीड्स पूरी नहीं होती ना, देन आई गेट इनटू डिप्रेशन. एंड एज पर मैस्लोस नीड्स हायरार्की, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स. हमारी फिजिकल नीड्स भी हैं, मेंटल नीड्स हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, इगोइस्टिक नीड्स हैं. सबसे ऊपर है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल नीड्स. Spiritually. अगर इसको पूरा नहीं करेंगे ना हम, बाकी नीड आपने पूरी कर ली, even then you will not be satisfied and you will be depressed. And this is the core need. The spiritual need is your core need. जैसे कहीं spiritualist है, उनकी physical need हो सकता पूरी ना हो, मान लो खाने को नहीं मिला कभी, ठीक है, वो socialize भी ज्यादा नहीं कर रहे, या किसी ने उनकी तारीफ भी नहीं की, egoistic need ही पूरी नहीं हुई उनकी, but even then they are happy. They're happy. Why? Because उनकी ना spiritual need पूरी हो रही है. So spiritual need को पूरा करना बहुत जरूरी है, otherwise you will be depressed. साथ ही ना जीवन में जीने का कोई पर्पस होना चाहिए. अगर लाइफ हैज बिकम लाइक एक रिपीट मोड में चल रही है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, घर वापस आना है, टीवी पे मूवी देखनी है, सो जाना है, घर से उठना है, सो एक तो ये तो लूप चल गया है. तो monotonous हो जाती है मोनोटोनस हो life. गया. हाँ. सो मोनोटोनस साइक्लिंग लाइफ अल्टीमेटली मेक्स यू डिप्रेस्ड. Depressed, absolutely. और साथ ही ना जो लोग बहुत मैं वाले, मैं मेरा मुझको, मैं मेरा मुझको, इतने लोग जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ना, ईगो सेंट्रिक लोग, दे आल्सो बिकम डिप्रेस्ड. हमें औरों के लिए जीना सीखना चाहिए. अगर हम सब औरों के लिए जीना शुरू करेंगे, फर्स्ट रिप्लेनिश योरसेल्फ एंड देन कंट्रीब्यूट इन अदर पीपल्स लाइफ, वी विल बी हैप्पी, वी विल बी मोर एक्टिव. यस, ये ना सोचे उसने मेरे लिए क्या किया, हम क्यों करें उसके लिए, तो सर देन यू विल बी इन डिप्रेशन. साथ ही व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, डोंट बी अलोन. क्योंकि आप जब अकेले होते हो ना, तो भी आप अकेले नहीं होते, आपका मन आपके साथ होता है, और सारे डिप्रेशन का डेटा वहीं स्टोर्ड है. वो बार बार पॉप अप करता रहेगा और आपको डिप्रेस करता रहेगा. सो व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, डोंट बी अलोन, बी विद समवन, शेयर योर हार्ट. एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता है यारों के साथ,
नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। Wow, lovely. यस, तो दिल खोलना चाहिए किसी के साथ। Actually. अपना दिल खोलेंगे ना तो दिल हल्का होता है। Actually went out करने से प्रभु जी Yes, of वेंट course. आउट करें और साथ ही होता क्या है, सामने वाला व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल है तो Spiritual आपके लिए है। प्रे भी करता है, आपको सोल्यूशन भी Yes, देता है, yes. राइट? It's कहीं ना like ब्लेसिंग भी healing, देता है आपको। healing also in यस, the तो उससे same way. हीलिंग होती है, हीलिंग होती है, तो उससे भी डिप्रेशन ठीक होगा। Absolutely साथ ही right. ना बिकमिंग फिजिकली एक्टिव, ये बहुत जरूरी है। हमें वर्जिश भी करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, बिकॉज इन अ हेल्दी बॉडी resides It's a a healthy healthy mind. mind. इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। Absolutely. Having healthy food, Healthy that's food. also very important. और साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस Work life balance is so बहुत important. जरूरी है। Actually. तो अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो डिप्रेशन होता है। हर चीज के लिए समय होना चाहिए, वर्क के लिए भी समय, मेरे 9 घंटे 9 to 6 वर्क, साथ में चैंटिंग हरे कृष्णा के लिए भी समय होना चाहिए, रीडिंग भगवद गीता के लिए भी समय होना चाहिए, Right. अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए भी समय होना चाहिए। Quality time. Yes. Yes. Everything is important. एवरीथिंग इज And इंपॉर्टेंट, balancing out your roles. तो कई बार with ना सक्सेस की everything. जुनून में ना हम लोग ना बैलेंस खराब कर देते हैं कि नहीं खराब मैं कर करके देते हैं। दिखाऊंगा, व्हाट अबाउट योर रिलेटिव्स, योर हेल्थ, अरे यार छोड़ना यार, वो देखेंगे नहीं, फिर उसी को देखना पड़ेगा बाद में सिर्फ। सो इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस, हर चीज का That's समय so होता important. है, वो देना चाहिए, एंड देन उसका जो आए स्वीकार करना चाहिए। For parents like us and to all our viewers, how can we shape our children's, जो younger generation है हमारी, Yeah. उनको कैसे हम shape up कर सकते हैं towards spirituality, where it can help them, grow ये better. पेरेंटिंग के लिए आई हैव गॉट वन एक्रोनिम, पेरेंट्स, PARENTS। सो Okay. P stands for प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुग। बच्चों को कलयुग के ग्लैमर से बचाना। ये जो इंटरनेट की दुनिया है, ये जो OTT God. प्लेटफॉर्म्स की दुनिया है, तो इससे बच्चों को बचाना बहुत The ज्यादा most जरूरी है। toughest job right now. टफ है जो एक्चुअली टफ इसलिए बिकॉज़ पेरेंट्स themselves are addicted। Actually, जब that's मैं true. खुद ऐसे कर रहा हूँ, मैं बच्चों को कैसे मना करूंगा, तो बच्चा भी करेगा ना। सो P stands for प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुग। A for एसोसिएशन गार्ड, बच्चा किसके साथ उठता है, बैठता है, हंसता खेलता है, किन बातों पे हंसता है, आप देखिए, उसे ऑब्जर्व करिए। सो A for एसोसिएशन गार्ड, R फॉर रिस्पेक्ट एज अ कल्चर। हमें रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, दैट वी टीच बाय आवर ओन बिहेवियर। अगर मैं अपने माता पिता की इज्जत करता हूँ तो मेरा बच्चा सीखता है द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि That's माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, द वे माय मदर रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। Their parents. सो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। आर ई फॉर एक्सपेक्टेशंस बीइंग रियलिस्टिक। अपने आप को थोपना नहीं चाहिए, अगर मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो क्या हुआ, मेरा बच्चा इंजीनियर बन के दिखा, क्यों जी आप नालायक थे तो उसको क्यों तुम Imposing. थोप रहे हो, व्हाई आर यू इम्पोजिंग योरसेल्फ। Yes. तो expectations should be realistic. E. And for narrating stories, every parent should have at least 100 stories in their account. कि जब भी कोई बात आई स्टोरी सुनाएंगे बच्चों, बिकॉज स्टोरीज बच्चे पसंद करते हैं। Yes. एंड स्टोरीज कौन सी है, ये Absolutely. रामायण की, महाभारत की, श्रीमद् भागवतम की, वो स्टोरीज बच्चों को सिखानी चाहिए। So many उसमें characters. लेसन्स होंगे। हाँ. अगर दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों भाई भाई लड़ते भाई रहते हैं, मैं राम और लक्ष्मण की स्टोरी सुनाऊंगा, मैं राम और भरत की स्टोरी सुनाऊंगा। उससे बच्चों को पता लगता है ओ ब्रदर ऐसे होते हैं, ओके। एंड फॉर नरेटिंग स्टोरीज, एंड T फॉर टॉलरेंस। माता पिता कभी बच्चों को धून देते हैं बस, गंदे मार्क्स आए डैड, बदतमीजी का डैड, टॉलरेट आल्सो। बच्चे Patience. sometimes they take their time, some children are slow, some are fast, Some are fast. some are like chatterbox, some We are all like are quiet. different. Yeah, so we should tolerate. मान लो हो सकता है वो academically इतना नहीं है, हो सकता है वो sports में ज्यादा अच्छा है, Right. maybe he's more creative, उसको drawing करना अच्छा लगता है, singing अच्छा लगता है, तो उसको उस तरह से encourage करें। So T, and then S stands for spiritual values. Spiritual values. बच्चों को spiritual values भी This is so सिखानी चाहिए। important. Yes, so PARENTS. P for protection from glamour of Kalyuga, A for association guard, R for respect as a culture, E for expectations being realistic, N for narrating stories, T for tolerance, and S stands for spiritual values. ये follow करेंगे, parenting will be good. Yes, absolutely. प्रभु जी, भगवद गीता 5000 years पहले कहा गया है, और इट्स अ संवाद बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा जी। एंड आई थिंक हमारी इतनी पुरानी संस्कृति है, इतने साल पुरानी संस्कृति के बाद हम व्हाई वी आर नॉट इन द हैप्पी इंडेक्स ऑफ टॉप 100। Yeah. So what are your thoughts on it? Yeah, उसका कारण ये है because we are trying to copy the West. Yes, absolutely. लेकिन हम चाहे फटी जीन्स पहन लें, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोल लें, यो कर लें, बट इंडियंस कभी अमेरिकन या यूरोपियन नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे रूट्स वही है ना। My roots वही लेकिन है, हमने रूट्स right. छोड़ भी दिए अपनी, सो हम इंडियंस भी इतने नहीं रहे, हमारे वैदिक कल्चर का फॉलो कहाँ करते हैं हम लोग, पर अमेरिकन हम बन नहीं सकते, यूरोपियन हम बन नहीं सकते, तो हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। सो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो आज इंडियंस जो है दे आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस, Yes.
इसलिए ये लोग खुश नहीं है आज। हमारे वैदिक कल्चर में रह करके हाउ कैन नॉट समबडी नॉट बी हैप्पी? इट इज सच अ सिंपल ब्यूटीफुल कल्चर। ऑल अक्रॉस द ग्लोब पीपल कम टू इंडिया टू लर्न अबाउट आवर स्पिरिचुअल कल्चर। तो इसलिए आज इंडियंस जो है वो दुखी हैं। साथ ही दूसरा कारण ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी कोई स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है। इट इज वेरी स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल इंडिया, नो डाउट स्किल इंडिया अच्छा होगा, जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है वैल्यू इंडिया। उसके अंदर सो वैल्यू बेस्ड इंडिया अगर होगा, उसके अंदर देयर इज कोऑपरेशन, देयर इज लव, देयर इज काइंडनेस, देयर इज फॉरगिवनेस, देयर इज कोऑपरेशन। वैसा इंडिया हमें चाहिए। पर वैल्यूज आज कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। इवन वैल्यू एजुकेशन ऑप्शनल है, यानी इंसान बनना ऑप्शनल है, बट टू बिकम अ स्किलफुल मनी मेकिंग मशीन दैट इज कंपल्सरी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बकवास है एक्चुअली। इसीलिए आप बच्चे कितने हैं, दे आर सो ड्राई, दे आर सो अनग्रेटफुल, वेरी इगोइस्टिक, वेरी टची। तो ये जेनजी का बेचारा को बहुत ही बुरा हाल है। तो इसलिए भी हम देख रहे हैं आज इंडिया के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा इतना खराब रैंक हो रहा है। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ natural resources we are so good, in terms of nation's leadership so good, but still why Indians are not so happy? So abundant in everything. Identity crisis is there. So what we can do, Prabhuji, I mean, to improve those levels? देखिए बेस्ट तो ये है कि स्पिरिचुअल कल्चर शुड बी एज पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सेकेंडली कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी चाहिए कि ठीक है एजुकेशन सिस्टम जब रिफॉर्म होगा तब तक हम तो कुछ करें। सो आज YouTube के माध्यम से, Instagram के माध्यम से some revolution should be there. So अपने एंड पे we should try our level best to inculcate those values. वो करेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। साथ ही we should have some programs, some kind of retreats for youth. Yes, इसमें फन भी हो, फन भी है और साथ में सीखना भी हो, दोनों होना चाहिए। तो वो करेंगे तो बच्चे आएंगे, सीखेंगे, why not? One thing in the education system which we can change, आपके हिसाब से अभी के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या चेंज कर सकते हैं हम टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज? एक तो क्या है, संस्कृत शुड बी कंपल्सरी। संस्कृत क्या है, संस्कृत से डिक्शन भी अच्छा होता है, संस्कृत से मेमोरी भी अच्छी होती है, वैल्यूज भी आती है। उसमें आप क्या पढ़ोगे, चाणक्य नीति पढ़ोगे, नीति श्लोक पढ़ोगे, राइट, पंचतंत्र के कुछ लोग आएंगे, यू नो मे बी सम वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता। उससे ना बच्चों में वैल्यूज आती है। सो संस्कृत शुड बी कंपल्सरी। आप स्टैंडर्ड 5th से लेकर के भले आप 12th तक, राइट नाउ इट्स ऑल ऑप्शनल। यस, ऑप्शनली होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। तो एक तो वो चेंज होना बहुत जरूरी है। साथ ही वी शुड आल्सो टीच देम सम इंपॉर्टेंट स्किल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मिंग। फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी की जॉब नहीं है ना, मेरे पास 1 एकड़ की जमीन है, अरे मैं जी लूंगा एक्चुअली। यस, तो खेती बाड़ी करना आना चाहिए, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करा है बच्चों को। सिर्फ एलीट स्कूल में एसी क्लासेस के बीच में बिठाएंगे ना तो सीख तो लेंगे, लेकिन साथ में एरोगेंस भी आएगी। ग्राउंड पे लेकर के आए, इनसे पसीने बहाएं, इनको समाज में सेवा करने के लिए भेजें, दैट वी शुड डू। साथ ही सबको ना थोड़ा सा सोल्जर वाली ट्रेनिंग में आनी चाहिए। जैसे इजराइल के अंदर ये कंपलसरी है, सबको आर्मी ट्रेनिंग लेनी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एवरीवन गोस टू फ्यू इयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग। तो सबके अंदर थोड़ा वो आना चाहिए। आफ्टर योर मे बी योर 12th क्लास सबके लिए कंपलसरी है, आप इतने साल की ट्रेनिंग लोगे। उसके बाद देन यू गो इनटू योर प्रोफेशनल एजुकेशन व्हाटएवर। तो उससे क्या एक फिजिकल फिटनेस भी आएगी और साथ साथ एक मेंटल टफनेस भी आती है, तो वो भी जरूरी है। और फिर आपातकालीन स्थिति में कभी जरूरत पड़ी, देन ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो बी देयर सर्विंग द नेशन। तो एक वो वाला चेंज भी लेकर के आना चाहिए। साथ ही हमें देखना चाहिए कि ना बच्चों का जैसा स्वभाव है उसके अनुसार वी शुड मेक मॉड्यूल्स। अभी क्या है, अब या तो जेईई की तैयारी करेगा या नीट की तैयारी करेगा, पर ना और बाकी ऑप्शंस तो बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को पूछो डॉक्टर, इंजीनियर और तीसरा प्रोफेशन बताओ, बच्चे घूम जाते हैं। एडमस बोल देगा कोई, लॉ बोल देगा कोई। तो हमें ना जॉब की और डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं ये भी बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोटा गए थे, कोटा में आपने प्रिपेयर किया, मेरे तो खराब नंबर आए, मेरा जो जेईई में हुआ नहीं, सो आई एम डफर नंबर 1। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मे बी यू आर मेंट फॉर सम अदर प्रोफेशन। इस शायद देखिए कुछ जो अनकन्वेंशनल वाले जो प्रोफेशन है ना, उससे बच्चे बड़े आगे बढ़ जाते हैं। मानो कोई नालायक था, उसको कुछ हो नहीं रहा, तेरे से ना होगी साइंस, बेवकूफ, उसने फाइन आर्ट्स ले ली, फाइन आर्ट्स लेके उसने स्कल्पटिंग सीख ली। बोलो जी, वो स्कल्पटिंग करके वो तो कहाँ पहुंचा, इंटरनेशनल स्टार बना हुआ वो। तो इसीलिए बच्चों को और ऑप्शंस भी हमें सिखानी चाहिए कि बेटा सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनना ही नहीं होता, इसके अलावा यू कैन बी डाइटिशियन, यू कैन बी योगा टीचर, यू कैन बी इनटू स्पोर्ट्स। जैसे स्पोर्ट्स में भी खेलने वाले नहीं, एडमिन वाले भी होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में सर्व करते हैं, ऐसे ऑप्शंस भी हैं। तो वो भी सिखाना चाहिए बच्चों को। आयुर्वेद, people can get into Ayurvedic education, why not? There's so many options now. So many options, ये बताना चाहिए बच्चों को, पर ये है ही नहीं आज एजुकेशन सिस्टम में। बस वही है। I think right counseling is also required. तो काउंसलिंग की आवश्यकता है। साथ ही बच्चों को ये बोले, अगर नंबर नहीं भी आते बेटे लाल तो तुम मर नहीं जाओगे। एजुकेशन में मार्क्स जो हैं इम्पोर्टेंट है, पर सब कुछ नहीं है। तो सुसाइड रेट भी कम होगा उसकी वजह से। ये तो बहुत प्रेशर रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
तो इसलिए बहुत इस तरह का प्रेशर भी नहीं करना चाहिए. तो कहीं ना पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए हाउ टू इंस्पायर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग चिल्ड्रन. प्रेशराइजिंग पेरेंट्स से रिलेशनशिप एडवाइस की तरफ चलते हैं. आपको क्या लगता है आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, सो मेनी फेल्ड मैरिजेस यू कैन सी अराउंड, एंड एक्चुअली बहुत ये चल ही रहा है काफी टाइम से. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? इसको मैंने बोला ना, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग. अभी हमने क्या करते हैं ना कि भाई दोनों काम करो, पैसा कमाओ, सो दैट यू हैव लग्जरियस वंडरफुल लाइफ. नहीं, ऐसा नहीं है. दोनों को समय निकालना चाहिए कि भाई हमें इतना पैसा नहीं कमाना, हमें 2 वक्त की रोटी कमानी है, बट वी हैव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर. हम समय जिसके साथ बिताते हैं हमारा दिल उसके साथ जुड़ जाता है. मान लो मैं काम करता हूँ अपने ऑफिस में, वो काम करती है अपने ऑफिस में, उसको वहाँ कोई और समय देता है, मेरे को यहाँ कोई और समय देती है. मेरा दिल इसके साथ लग गया, उसका दिल उसके साथ लग गया, बाद में हो गया डिवोर्स, उससे फिर यहाँ मैरिज कर ली, फिर ये भी बाद में ये भी अलग अलग हो लेते हैं. तो एक बहुत बड़ा कारण. प्रभु जी, एक और चीज, आजकल लिविंग रिलेशनशिप्स भी बहुत चल रहा है. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, लिव इन तो मतलब मैं तो इसको कुत्ते बिल्लियों कल्चर मानता हूँ. Yes. अगर लिव इन देखा जाए बेसिकली इतना सेल्फिश है लिव इन. जब मैरिज होती है ना, ये 2 परिवारों का मैरिज होती है. Exactly. पर लिव इन वाले कहते हैं अरे भाड़ में गए सारे रिश्ते नाते. हाँ, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे. इतने स्वार्थी है लिव इन वाले, माय गॉड. और होता क्या है देखो, क्योंकि रिश्ते तोड़ के आए ना, तो इनमें अब आदत तो है रिश्ते तोड़ने की. ये एक दिन रिश्ता तोड़ लेंगे, थोड़ा सा नोकझोंक होगी, कहता है हमारी कौन सी शादी हुई है, चल निकलना, अरे तू निकलना, अरे तू निकल. मतलब मैं तो ऐसे केस जानता हूँ लिव इन में दोनों ने जूते चप्पलों से मारा एक दूसरे को, इस तरह से अलग हुए हैं. इट वाज नॉट पीसफुली पार्टिंग अवे ना, चप्पलें मारी दोनों ने, माँ बहनी गालियां बकी एक दूसरे को. फिर ऐसा इतना ड्रामेटिक नेगेटिव क्लाइमेक्स होता है इनका, क्योंकि ये लोग सेल्फिश लोग हैं. ये जितने लिव इन वाले हैं ये सेल्फिश लोग हैं. ये इससे वो देखो, उसमें कोई रिस्पांसिबिलिटी होती है कि मेरे को आपकी जिम्मेदारी उठानी है. यार कमिटमेंट फोबिया है. कमिटमेंट नहीं है ना, और क्या है, we are coming for some physical union. Yeah, you lick my body, I lick your body, and that's it. तो ये बहुत ही मतलब घटिया मेंटालिटी वाले लोग हैं जो कि लिव इन के अंदर रहते हैं. भले ही इस वीडियो को देखने वाले जो होंगे ना कहेंगे ये तो साधु बाबा है, इसको क्या पता ये प्यार मोहब्बतें क्या होती हैं. बट एक्चुअली प्यार मोहब्बत में देयर इज रिस्पांसिबिलिटी एंड सर्विस. पर इसके अंदर कोई सेवा वगैरह नहीं है, नो कमिटमेंट. यस. और देखो इसमें इवन साथ रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई लिव इन वाले को घर नहीं देता रहने के लिए. कहते हैं नहीं हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग. ये बोलना पड़ता है उनको, नकली आधार कार्ड बनाने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करनी पड़ती है उनको. अब इसके बाद जो बच्चा हो गया मान लो, अब इसको कौन संभालेगा? तो तू संभाल इसको. अब लड़की कहे यार मैं कहाँ संभालूंगी, अब बेचारी की जिंदगी खराब. यूरोप में 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड एवरी ईयर टू टेक केयर ऑफ सच मदर्स, जो एक लफंटर के साथ लिव इन में थी. लफंटर भाग लिया, इसको बच्चा दे गया. अब ये बच्चे के साथ रहती है अकेले. अब बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल रहा. अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंड जस्ट टू टेक केयर ऑफ दीज मदर्स जो लफंटर के साथ रही लिव इन में, और वो लफंटर भाग गया. अब वो अकेले बेचारे बच्चे को पाल रही है. तो इसलिए इट कॉजेज डिजास्टर मोर फॉर वुमेन. देखो आदमी को कुछ नहीं आता, चाहे इंडियन कल्चर की बात करें, यूरोप या अमेरिका. सो यू तो सीन इट ऑल. यस, मैंने देखा है ना वहां पर. फाइनली फिर वो किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाई हुई है, वो भी उसको यूज ही कर रहा है. उसको पता है मैंने तो मेरी तो पत्नी है ही है, इसके साथ मजा भी कर लेता हूँ. तो मतलब वो बेचारी तो कहीं की नहीं रहती, उसकी इज्जत तो हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उसकी. तो लिव इन इज एन इंसल्ट टू वुमेन. हाँ, लेकिन लड़के लड़कियों को कन्विंस करते हैं अरे प्यार है यार, हमारा प्यार है, और क्या. नहीं तो ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे, पर कुछ नहीं है, वो स्वार्थ है, यूज कर रहा है उसको, वो अरेंजमेंट. यस. तो इसलिए वो ये तो मतलब ये कुत्ते बिल्लियों का कल्चर इससे बोल रहा हूँ. रीजन भी कुत्ते कुतिया भी ऐसे होते हैं. कुत्ते कुतिया साथ रहते हैं, बाद में कुतिया दूसरे कुत्ते को ढूंढ लेती है, कुत्ता दूसरे कुतिया को ढूंढ लेता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. इस तरह से ये लड़का लड़की साथ रहे, फिर इसने अपनी लड़की ढूंढ ली, इसने अपना लड़का ढूंढ लिया. ये कुत्ते कुतिया लेवल का ही कल्चर है एक्चुअली. तो सुनने वालों को थोड़ा दुख लगेगा कि हमारे प्यार को कुत्ते कुतिया कल्चर बोला, उंगलियां चीने, माय गॉड, ऐसे हैवी वर्ड्स ये तुम्हारे लिए हैं. देखो हमारा कुछ नहीं आता, तुम अगर लिव इन में रह भी रहे हो. साधु का काम है आपको सही दिशा दिखाना. व्हेन साधु फ्लैटर्स यू, ही इज योर एनिमी. सो साधु को चापलूसी नहीं करनी चाहिए. तो मैं चापलूसी बिल्कुल नहीं करूंगा लिव इन वालों की. एग्जैक्टली. तो भाई तुम्हारे भले के लिए पसंद करते हो ना, शादी करो, घर बसाओ, बच्चे करो, सेटल डाउन विद मैच्योरिटी, विद एटीट्यूड ऑफ सर्विस, instead of just having some skin squeezing business. No, nothing. Take responsibility. तो इसलिए living is absolutely bogus. ये रिश्ता है ही नहीं. ये तो बंडलबाजी है, धोखेबाजी है. Everybody is very scared of death. Yes. But we want your thoughts life after death. देखिए life after death होती है. Actually, और इसके तो case studies हैं. Even if somebody wants to read about reincarnation, I would recommend a book, Demystifying Reincarnation by Chaitanya Charan. Okay.
It's on Amazon. Okay. It gives you so many case studies which prove that there is life after death. So death is just a comma. It's not a full stop कि Full भाई stop. अब हो गया खत्म हो गया नहीं कॉमा है How अगली लाइफ interesting. शुरू होती है as per our karma we get new body. So भगवद गीता भी इस बात को बताती है. There are many case studies. अगर कोई पढ़ना चाहे E.N. Stevenson को टाइप करे जाए गूगल पे टाइप Okay. करें E.N. Stevenson. There are many case studies actually. और पूरा इसके ऊपर कंपेंडियम अगर आपको चाहिए then चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत सुंदर किताब लिखी है with lot of research. उसका नाम है Demystifying Reincarnation. So Okay. there is life after death. Death में life के बाद फिर उसमें death भी आती है लेकिन फिर से life है. So life continues because soul is always there. Body is changing. So when we change the body, that is death. जैसे आज अपने ये अभी आप कपड़े पहने हुए रात को आप नाइट सूट पहन लोगे Changing. बट यू आर स्टिल देयर Yes. राइट उस तरह से अभी ये शरीर है शरीर फिर यूजलेस हो गया बीमारी वाला हो गया टूट फूट गया देन न्यू बॉडी इज देयर New bodies. एज पर कर्मा दैट्स इट तो डेथ को अगर आप ये लेके चलते हो इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ बॉडी चेंज ऑफ क्लॉथ्स ये प्रोटीन का कपड़ा है इसको चेंज करने का है देन डेथ से आपको डर नहीं लगता Yes, थोड़ा उसको पेन होता है नो डाउट उसको सहते हुए लेकिन थोड़ा नहीं We were दर्द तो afraid, you know, it's very this kind दर्द of तो होता है, topic. no doubt. Why you want to bring this up? But Yeah. people are afraid. But sooner or later, everybody has to. डेथ तो आनी सभी को आनी है बट जस्ट Manufacturing भी है और तो एक्सपायरी डेट भी है expiry बिल्कुल भी है. यस ऑफ कोर्स Right. प्रभु जी, राम जी का धैर्य या कृष्ण हाँ. जी की चंचलता दोनों ही हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट तो है हाँ, बट हाँ. कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है और देखिए- हमारी एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए? हाँ जी देखिए राम जी का धैर्य भी चाहिए और कृष्ण जी की चंचलता हम कॉपी नहीं कर सकते हम्म. कृष्ण जी ने जो हमें दिया ना वो भगवद गीता दिया एक्चुअली सो भगवद गीता इज व्हाट कृष्ण इज ऑफरिंग टू अस वी कांट कॉपी कृष्ण चंचलता हम्म. वो चंचलता उनकी कहाँ पर आएगी गोपियों के साथ हाउ मेनी गोपीज ही हैज 10,000 करोड़ गोपीज Yes. आप करो कॉपी पेस्ट करो आप कर लेंगे कृष्ण Possibly. लिफ्टेड गोवर्धन हिल करोगे Correct. ही शोड विश्वरूप करोगे तो कृष्ण की जो आप चरित्र को देखेंगे यू कांट कॉपी कृष्ण बिकॉज ही इज गॉड He's हाउ God. कैन वी कॉपी गॉड Yes. But God also comes. Krishna comes in Maryada Purushottam form. That is Yes. Lord Ram, ideal brother, ideal wife, ideal husband, ideal son. So वैसे उस तरह से आप राम जी को आप काफी हद तक फॉलो कर सकते हो in terms of behavior. कुछ चीजों में तो राम जी को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं. तीर चला करके पूरा समुद्र सुखा देना ये हम कर लेंगे नहीं कर सकते. तो कुछ चीजों में तो हम राम जी को फॉलो नहीं कर सकते. पर कृष्ण को तो हम बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. In terms of his activities, everything is godly, divine, spiritual. राम जी का भी सब कुछ स्पिरिचुअल है लेकिन वो सिखाते हैं तो वाई हिज बिहेवियर तो कृष्ण हमको दिया भगवद गीता कहते मेरी वाणी सुनो इसको फॉलो कर लो मुझको कॉपी नहीं कर पाओगे व्हाट आई एम डूइंग आई डू एवरीथिंग एट सुपरा ह्यूमन लेवल तो इसीलिए कृष्ण की चंचलता है वो पूजनीय है कृष्ण की चंचलता जो है इनइमिटेबल है वन कैन नॉट कॉपी दैट वन कैन नॉट इमिटेट दैट यस And Prabhuji, the last question for this podcast, what is spirituality to you? Okay, spirituality means to revive our loving divine connection with God. That is spirituality. ये लगता है शायद मन की शांति मिल जाती है ना इससे ऐसे बैठ जाओ गहरी सांस लें और एक्सेल करें दिस इज स्पिरिचुअलिटी ऐसे ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है प्राणायाम है Pranayama. प्राणायाम प्रिपेयर्स यू फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी It's breath work. या सो ब्रेथ वर्क है तो ब्रेथ वर्क से क्या होता है आप प्राणायाम से आपका मन अच्छा होता है आपकी बॉडी अच्छी होती है दैट्स इट लेकिन स्पिरिचुअलिटी मींस प्राणायाम करने के बाद देन यू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड Yes. राइट दैट इज Holy स्पिरिचुअलिटी names of God. विद यर्निंग कि ना मेरा रिश्ता हो जाए आपके साथ यू लव मी आई डोंट लव यू कृष्णा ओ लॉर्ड ओ सुप्रीम लॉर्ड लेट मी एडमायर यू लेट मी बी एडिक्टेड टू यू to your service, to your form, to your qualities, to your activities, to your mercy, oh Lord. So yearning like this is spirituality. So making dedicated, sincere efforts by following the path of bhakti. Yes. When we revive or say we acquire that mercy, that we have relationship with God, whether as a servant, whether as a friend, there is Dasiras, there is Sakhiras, there is Vatsalyaras, and there is of course Madhuryaras. In some of the rasa, we revive that relationship with Krishna. That is spirituality. When we are in kingdom of God, with Him, face to face, talking to Him, listening from Him. So when we are having that relationship with God, that's the goal of spirituality. Spirituality. It is not that you merge into some light and then you become one with light. You can't take your destination so lightly. It is all just light. No. So service to God. Like Hanuman ji serves Ram. He doesn't merge in Ram. He Yes. serves Lord Ram. Radha ji serves Krishna. She doesn't merge in Krishna. Similarly, so we are supposed to serve the Lord, not merge into God. So spirituality is that. It's not about nirvana, which is you merge into void or you merge into light. No, Right. it's about relationship with God. Relationship. Sweet, divine, loving, full of service, eternal, forever,
relationship with God. That is spirituality. Lovely. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. It was an honor to have you at my show. Seriously. Thank you. Thank you. Thank Preeti you. ji, Thank you for your inviting me. time. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.